हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बिल्कुल क्विक रिवीजन। तो नोटबुक लेकर तैयार बैठेंगे। मैंने फ़िज़िक्स पढ़ने के आइडियाज़ में आपको एक आइडिया दिया था कि आफ्टर ईच चैप्टर प्रिपेयर टू मेक अ माइंड मैप। सो दिस इज़ जस्ट एन इलस्ट्रेशन दैट हाउ कैन वी मेक माइंड मैप. Mind map means in the center you will have the name of the chapter and it will have different branches as in a tree, and in each branch you will notify the different quantity or the different topic of the chapter. Then in that topic sub branches will be there. So this is the mind map process. Every time when you finish a chapter you have to do complete chapter in this method in the 2 pages of your notebooks. So let's start. Units and measurement. The very first topic is quantities. There are 3 types of quantities. First, 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and this is amount of substance which is measured in mole. Second is 2 supplementary quantities: plane angle which is measured in radian, solid angle measured in steradian, and the third type of physical quantities is derived quantities, which are many more. Every time when a derived quantity is discovered, it is approved by the International Conference CGPM that I have covered in the detailed lessons of units and measurement. Every quantity completes this criteria: N1 U1 equal to N2 U2, means a number connected with a unit is always inversely proportional to the size of the unit. As the unit is bigger, the multiple of the unit will be smaller. As we can see that 1 meter equal to 100 centimeter. Meter is a bigger unit and the multiple is smaller, that is 1. Now the second topic is dimensions in this chapter. So the dimensions are the powers of fundamental quantities which are raised on fundamental quantities to get the unit of that physical quantity. Now dimensions of area, suppose I am taking 3 or 4 quantities. Dimensions of area are L square, means dimensional formula will be m0 L square T0. Hence its SI or MKS or mechanics unit will be meter square. The dimensional formula for force will be L1 M1 T minus 2. SI unit होगी न्यूटन, MKS unit हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड CGS unit will be dyne. रिलेशनशिप होगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 raised to 5 dyne. सिमिलरली वर्क की डायमेंशंस में m1 L square T minus 2, SI unit is joule, CGS unit is erg, relationship is 1 joule equal to 10 raised to 7 erg, which we can derive by the second use of dimensions, जो हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर में किया हुआ है. And next is the MKS or the dimensional based unit is for work is किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये तीनों यूनिट्स आपके पास में कनेक्टेड आ जाते हैं. नेक्स्ट लेते हैं हम कि जिन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेपरेट मतलब डिफरेंट होंगे, उनमें सिर्फ कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलाउड हैं डिफरेंट डायमेंशंस में. तो योर आंसर विल बी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. And the physical quantities which use same dimensions can always be added or subtracted. So this is very important part of the NEET or JEE questions. This makes principle of homogeneity. Homo means same, means the physical quantities which are of same dimensions can only be added or subtracted.
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो फर्स्ट इज़ वी कैन चेक इन एनी ऑफ द ऑप्शन। जैसे कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर दिस फिज़िकल क्वांटिटी। अब सपोज़ बिल्कुल से हमारा दिमाग आउट हो गया कि नहीं समझ में आ रहा, हमको तो लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, तब उस समय आपके पास में एकमात्र तरीका होता है कि चेक इट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, check whether LHS has same dimensions as that of RHS, and if any of the option doesn't satisfy this criteria, it means that option is wrong. And suppose if only one option satisfies the criteria of homogeneity of dimensions, it means that formula is correct. इस तरह से आप बेहतर तरीके से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है आपके पास, to convert units from one system to another. Again you will be using this n1 u1 equal to n2 u2. Then third type is recapitulation of a physical relationship according to the given quantities. Suppose आपको एक question आता है कि the frequency of the string, suppose I write the question, the frequency of the string depends on the tension, mass and length. Then derive the formula for frequency of the stretched string. So how you do it? Frequency directly proportional to tension raised to A, mass raised to B and length raised to C. And then on writing 4-dimensional formulae for 4 physical quantities, we can derive the formula for frequency. In this way again, this third use of dimensional analysis can be used to find unknown relationships which you have never studied. ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में डायमेंशंस के, आपके पास लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहले आप डायमेंशंस के थ्रू किसी भी कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते, दैट कांस्टेंट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। सेकेंड इज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिसके कारण बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन टफ लगते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ ऑपरेशंस होते हैं आपके पास एज लॉगरिथम। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच एज साइन थीटा, और साइन के अंदर कोई भी बड़ा सा ब्रैकेट भी होने दो, बट आफ्टर ऑल दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। देन एक्सपोनेंशियल एंड प्योर ratios. These all are dimensionless, so we cannot analyze them in any physical condition with the help of dimensional analysis. ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपके पास डायमेंशन में क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। First is dimensionless constant such as refractive index, relative density or specific gravity. Means this is a constant which has no dimensions. Next is dimensional constant such as universal gas constant or universal gravitation constant, जो constant तो होगा पर उसके पास में LMT के कुछ ना कुछ पावर्स होंगे। देन थर्ड आर डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। नाम ही सजेस्ट कर रहा है इट्स वैल्यू विल गो ऑन चेंजिंग बट इट विल बी डायमेंशन लेस। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज डायमेंशनल वेरिएबल, मीन्स ऐसा वेरिएबल मतलब एक ऐसी क्वांटिटी विच इज़ चेंजिंग एवर बट इट हैज़ डायमेंशंस इन द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ एरर्स। तो एरर्स के अगर आप कैलकुलेशन बेसिस पॉइंट्स देखें तो दे आर, सबसे पहले आप निकालते हैं मीन वैल्यू, मीन्स आप सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं एंड यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन सेकेंड यू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मीन्स एक एक रीडिंग का
आप मीन से डिफरेंस देखेंगे और फिर आप उसका मॉड्यूलस ले लेंगे, आप माइनस वैल्यू को भी प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट पार्ट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी के बाद आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। द नेक्स्ट पार्ट विल कम एज रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर मीन्स रेशियो ऑफ mean absolute error divided by the mean value which is also called as the true value। क्योंकि अगर आपके पास 5-6 ऑब्जर्वेशंस होंगे तो आप मीन वैल्यू को ही बोल देंगे कि दैट इज़ नियर टू द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज एरर। व्हेन रिलेटिव एरर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 देन दैट इज़ कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हो गया आपका एरर्स का रिवीजन। अब एरर्स में एक सबसे जो बॉसिंग पॉइंट आता है कि कैसा भी कैलकुलेशन है एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ गिवन बाय रो एल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप लेते हैं पाई आर स्क्वायर। एरर्स कभी भी हम कॉन्स्टेंट्स में कैलकुलेट नहीं करते, सो आई हैव इग्नोर्ड दिस पाई and rho resistivity of the material is also constant. So what is the relative error in resistance? Del R upon R equal to del L upon L plus power सामने आ जाती है and errors always add. So this is plus twice of del R upon R। तो कई बार आपको नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है एक फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देकर कि विच क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड विद द अटमोस्ट केयर। तो आप उस क्वांटिटी को सबसे अच्छे से मेजर करेंगे, केयरफुली मेजर करेंगे, इन विच द चांसेस ऑफ एरर्स आर मैक्सिमम, such as in this formula the radius, if the radius measurement is wrong the error will be doubled. So our answer for this question is radius। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में द टॉपिक कि एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन में क्या फ़र्क है। अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो बहुत लोग ये दोनों वर्ड्स को मिंगल कर देते हैं, बट इन फिज़िक्स पर्टिकुलरली इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। एक्यूरेसी वर्ड का मीनिंग है बिल्कुल द नियरेस्ट अप्रोच टू द ट्रू वैल्यू, एंड प्रेसीजन का मीनिंग है कि हो सकता है वो ट्रू वैल्यू ना हो बट आपस में जो सारे ऑब्जर्वेशन हैं वो क्लस्टर्ड हो, मतलब बिल्कुल एक कंप्लीट डेंस क्लाउड बना लेते हैं वो। सो दैट ऑब्जर्वेशन और दैट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड एज प्रिसाइज सेट। प्रेसीजन मेजरमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल 2.3, 2.30, 2.300 में से कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। सो काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच। इट हैज़ 2 significant figures, 3 significant figures, 4 significant figures. So obviously this last result is most precise result। अब which result is most accurate, तो उसके लिए आपको ट्रू वैल्यू का क्वेश्चन में मिलना ज़रूरी है। फिर आप चेक करेंगे कि विच ऑफ दीज रिजल्ट इज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू द गिवन ट्रू वैल्यू इन द क्वेश्चन, सो दैट ऑप्शन यू विल चूज़ फॉर द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके पास में 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो मोस्ट डाउटफुल डिजिट्स होते हैं उनको आप बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन रूल्स के बाद आता है उनकी राउंडिंग ऑफ, एंड द लास्ट पार्ट इज़ देयर कैलकुलेशन इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द रूल्स। तो रूल्स को मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से बताती हूँ। दिस यू कैन डू इन योर माइंड मैप ऑल्सो। मैंने पहले से एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं लिखे हैं
कि फिर कैसे आपको थोड़ा सा नेचुरल फील होना चाहिए. सपोज इन द एग्जाम्पल वी आर टेकिंग नॉन ज़ीरो डिजिट्स. सो 234.67 हैज़ 5 significant figures. Second, suppose I write 2.34 into 10 raised to 6 meter. So power of 10 is not counted. So number of significant figures are 1, 2, 3. ठीक है. नेक्स्ट एक मैंने ट्रिक बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के वीडियो में. येस येस नो नो. First, yes is used for the presence of decimal point, and second, yes is agreed for the counting of trailing zeros. So suppose I am taking a number 4.000. Yes, yes. मतलब अगर decimal है तो आप trailing zeros को count करेंगे. So this has 4 significant figures. Now no no means समझ गए होंगे आप कि no decimal point, so no counting of trailing zeros. So suppose I write 4000, तो it has no decimal point. अब बेटा अपने मन का इस्तेमाल नहीं करना कि मिस आएगा तो डेसिमल पॉइंट ऐसे तो आ सकता है, हम ऐसे तो लिख सकते हैं. नेवर. आपको फिज़िक्स में पर्टिकुलरली इस टॉपिक में वेर यू डिमांड फॉर द एक्यूरेसी डेसिमल एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ और बाय माई सेल्फ विदाउट क्वेश्चन गिवन इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अलाउड. सो no decimal point, no counting of the trailing zeros. So it has only one significant figure. ठीक है. Next rule comes for the zeros which are sandwiched between decimal point and first non-zero digit. So these two zeros are not counted. So this has only 4 significant figures. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम राउंडिंग ऑफ अ नंबर में, जहाँ आपके पास 3 रूल्स हैं. इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5 then the previous digit will increase by 1. If the digit dropped is less than 5, the previous digit will remain same. And if the digit dropped is exactly equal to 5, you will check the previous digit. Now if the previous digit is even, then it will remain unchanged. But if the previous digit of 5 which is to be dropped is odd, then this digit will increase by 1. So let's see an example. Suppose आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, round off the given numbers 10 up to 3 significant figures. This is our question. ठीक है. पहला क्वेश्चन दिया मैंने 4.236. I am taking in accordance with the instructions given in the mind map. तो आपको इसको ड्रॉप करना है. This is greater than 5, तो previous digit will increase by 1. So it is equal to 4.24. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल 4.651. अब इसको भी हमें लाना है 3 significant figures जो यहाँ तक आता है. The digit dropped is less than 5, so the previous digit will remain same. So this will be 4.65. ठीक है. नेक्स्ट लिया हम लोगों ने if the digit dropped is exactly 5. So third example is 4.655. So इसको आपको ड्रॉप करना है जो exactly 5 है. तो आप प्रीवियस डिजिट चेक करो, इसकी प्रीवियस डिजिट ऑड है तो आप इसको 1 से बढ़ा देंगे. सो दिस विल बी 4.66. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 5.125. This is to round off up to 3 significant figures again according to the common instruction. So इसको हमें ड्रॉप करना है which is exactly equal to 5.
तो प्रीवियस डिजिट चेक किया, इट इज़ इवन, तो इट विल रिमेन सेम, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5.12। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्विक रिवीजन एंड दिस टेक्निक ऑफ मेकिंग माइंड मैप ज़रूर हेल्प करेगा आपके गोल्स तक पहुंचने में, क्योंकि आपका गोल अभी सीधे सीधे नीट और जेई नहीं है। आपका गोल है, वो फाइनल गोल है, आपका गोल है अभी एक एक चैप्टर, एंड बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन यू हैव गॉट एनॉर्मस टाइम टू स्टडी। तो आप चाहें तो नीट में 650 प्लस या फिर जेई में 240 प्लस 200 प्लस ऐसा भी गोल सेट कर सकते हैं। बट द थिंग टू बी रिमेंबर इज़ every chapter should be perfect by your side. Study, making notes, making mind maps, then doing at least 50 questions and then doing previous year questions. These are the success points. NCERT का साथ बिल्कुल भी मत छोड़ो. So next we will meet in next video, and till then happy learning. Bye bye.